A lot of the viewers and my students have this complaint that they get tired during CET. तो मॉक्स देने के टाइम पे या फिर उनको डर लगता है that actual CET के टाइम पे they will feel tired. So how to get rid of these tiredness? तो यहाँ पे 5 tips I am going to share with you which will help you become slightly more energetic during the CET and not be tired. Because see, the basic emotion या the basic sentiment remains that you are appearing for a test. बहुत सारे लोग ये टेस्ट देने वाले हैं. Everybody knows what they have signed up for. This is basically a requirement of the test that you're supposed to sit at one place for 2.5 hours and answer questions one after the other. But I know that थोड़ा difficulty हो सकता है. People might get feel slightly tired or fatigued. तो क्या करना चाहिए? कुछ simple tips है that I'm going to share with all of you. Have a look at it and then if you like the content then let me know in the comment section below that you like it. अब यहाँ पे first thing is you have to train your brain. तो ऐसे नहीं होगा कि अचानक से जाके you will suddenly figure out कि नहीं अभी everything is fine and you can force your brain to do things. ऐसे नहीं होगा. It is not a natural activity. Right? It is not something that people do on a day-to-day basis. Solving questions is not something that comes naturally to a lot of people. तो यहाँ पे you have to force your brain to do something that it is not used to. Evolution के अंदर अपने को कभी भी बैठ के एग्जाम के आंसर्स नहीं देने थे. But now it is the need of the hour that you have to do it because of which you will have to train your brain. So the first thing, take mocks in the same slot. जितने भी 1-2 mocks अभी दे सकते हो, try to take them in the same slot as that of your CET. Make sure that you are sitting in front of your screen a good half an hour, 45 minutes before your actual time starts and कुछ मत करना 35, 40, 45 minutes. Just stay in front of the system without having any access to your phone, without eating any food, water, anything. सिर्फ उसके सामने बैठना and then start your mock after 30 or 45 minutes. So to give you an example, if your slot is let's say at 9 o'clock in the morning, तो 8:15, 8:20 से अपने लैपटॉप के सामने बैठना और कोई टैब ओपन नहीं करना है, ना फोन यूज करना है, ना खाना खाना है, ना कुछ करना है. You have to sit in that same position or sit in that same chair without even getting up from 9 to 11:30. ये अपने को करना है, ठीक है. And 8:15, 8:20 से ही शुरू हो जाओ because that is exactly what is going to happen on the day of your test. ऐसे नहीं होगा कि 9 बजे का slot है तो 9 o'clock को it will start. No, you will have to be there at 8:15ish or so and then you will have to go and sit on your chair. तो उसके बाद you will not get to talk to people, you will not get to see your phone, कुछ नहीं करने मिलेगा. So make sure that you are mentally prepared for that. The second thing is avoid any distractions when you are taking the test. ऐसे नहीं करना है कि बीच में उठ के थोड़ा stretch कर लिया, किसी से बात करके आ गए, messages check किए, ये सब मत करना because doing that you are not training your brain to deal with the final day. उस टाइम पे पूरा ही अलग होने वाला है, वहाँ पे you will not get to do all these kind of things. तो वो मत करना so that you become restless on that day. यूज़ दी पोमोडोरो टेक्निक. दिस इज इन जनरल, मतलब आगे जाके भी कुछ अगर पढ़ रहे हो, कोई बी स्कूल के अंदर भी हो एंड यू आर नॉट एबल टू टेल योर सेल्फ कि ये करना है, तो देन यू कैन यूज़ दी पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो बेसिकली मीन्स एक छोटा सा क्लॉक होता था, ऑरेंज जैसे होता था, उसको पोमोडोरो बोलते थे. तो पोमोडोरो टेक्निक में होता ये है दैट यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. तो टाइमर लगा के रख दोगे दैट आफ्टर एवरी 40 मिनट्स आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स लेट्स से. तो मैं 40+5 ऐसे करके प्लान कर रहा हूँ, या फिर एवरी 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लोगे. That is something you can do so as to keep that excitement alive, so that you know that there is a break that is coming up and वही designated time है जहाँ पे तुम अपना एक छोटा सा break ले सकते हो. So train your brain to deal with the eventualities that you might face on the day of the test. The second thing, very very important, लोग नहीं इसको जनरली समझते, but eat healthy at least in the week leading to the test. यार eat healthy. यहाँ वहाँ का untested खाना मत खाना because there might be a lot of digestive trouble that you might come across. और एक बार CET में बैठ गए ना, you will not get out of the exam center at all. तो बहुत difficult हो जाएगा. अगर ब्रेक ले भी लेते हो, it's going to be a big problem for you to build momentum and regain it. तो प्लीज़ मत करना. हेल्दी खाना खा के जाना and you will be fine I think. तो यहाँ पे अगर टेस्ट शुरू हो रहा है तुम्हारा जो भी टाइम पे, तो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग अ गुड 2 आवर्स बिफोर द टेस्ट. सो अगर आफ्टरनून स्लॉट भी अगर 2:30 का स्लॉट है लेट्स से, देन 1:30 एंड 12:30, सो 12 o'clock 12:30 के आसपास तुम्हारा लास्ट मील हो जाना चाहिए. यू शुड नॉट ईट एकदम बिफोर द टेस्ट, एकदम 9 बजे खा लिया फिर खाना ही नहीं खाया, ऐसे नहीं करना चाहिए बिकॉज देन यू विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री. योर ब्रेन विल क्रेव फॉर ग्लूकोज फॉर दैट एनर्जी. तो वो मत होने देना. क्रेविंग नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग द टेस्ट, नहीं तो तुम्हारा फोकस हट जाएगा. सो ईट 2 आवर्स बिफोर द टेस्ट, गिव योर सेल्फ टाइम टू डाइजेस्ट इट इनिशियली एंड फिर उसको अपना काम करने दो. टेस्ट के एकदम बहुत ज़्यादा पहले मत खाना, टेस्ट के एकदम इमीडिएटली बिफोर भी मत खाना, नहीं तो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू डाइजेस्ट. ठीक है. अब क्या खाना चाहिए, अगेन आई एम नो एक्सपर्ट इन डाइटरी रिक्वायरमेंट्स एंड आई एम नॉट अ डाइटिशियन ऑफ कोर्स, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम वट एवर आई हैव गैदर्ड
from dietitians who are there. These are basically the recommended foods that are there that you can consume before a test. So proteins, and again all this is subject to you having some allergy or something. So agar eggs ko leke kuch you have some allergies or something, please don't consume these kind of things. This is just an indicative list. Do get in touch with your physician or dietitian, they will advise you in a better manner. But protein intake अच्छा होना चाहिए, eggs या nuts. Complex carbs खाना, simple carbs खाओगे तो immediately energy मिल जाएगा या immediately digest हो जाएंगे, you will again start craving for stuff. Healthy fats अगर खाओगे तो better रहेगा. अगर बहुत ज़्यादा unhealthy fats खाना शुरू कर दोगे तो उसको digest करने में बहुत ज़्यादा effort लगेगा. All your energy will go to your stomach, to your digestive system, and brain के पास कुछ energy बचेगा नहीं. So have a look at these kind of things, nuts, almonds, brown bread, oats. These are all nice things which will get digested also nicely. So try to have these kind of things. Avoid sugary snacks or caffeine. A lot of people think coffee पी के जाएंगे तो energy आएगा. Yes, energy आता है. Sugary snacks खाते ही energy आता है, I agree. But that is basically when you can maintain it. तो sports persons generally देखते हो ना कि वो लोग कुछ Gatorade या कुछ energy drink लेते हैं या they will basically try to keep themselves hydrated. ये करते रहते हैं. तो पानी तो अलाउड होता है सेंटर के अंदर, बट क्लियर बॉटल के अंदर होना चाहिए. सो यहाँ पे शुगरी स्नैक्स अगर खा लोगे ना तो एक हिट मिलेगा. सडनली यू विल हैव दिस स्पाइक ऑफ ग्लूकोज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. बट जब वो गिरता है ना, जब वो क्रैश होता है ना, तो एनर्जी जाता भी उतना ही जल्दी है. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट हैविंग शुगरी स्नैक्स और कैफीन इमीडिएटली बिफोर द टेस्ट, क्योंकि वो हिट तो आएगा बट जब वो गिरेगा ना तो उसके बाद जो तुम्हारा फोकस नीचे जाएगा या कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाएगा, एनर्जी नीचे जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स. सो प्लीज डोंट डू दैट. Improve water intake. A lot of you people might not appreciate it, but if you are not hydrated well, it might also lead to fatigue. It might also lead to feeling tired. Water और fatigue का generally relationship लोगों को पता नहीं होता है, लोग appreciate नहीं करते. But considering that the season is changing, it is becoming hotter in most places. Make sure that you improve your water intake. The more hydrated you are, the more fresh you will feel, the more lively you will feel. Water intake नीचे जाएगा ना, automatically तुम्हारा energy नीचे चला जाएगा. The third thing is टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी. अब ये तो हो गई बॉडी की बात, बट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी में भी ट्वीक करके यू कैन फील लेस टायर्ड ड्यूरिंग द टेस्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई व्हेन यू फील टायर्ड. यू कैन नॉट फील टायर्ड फ्रॉम मिनट 1, राइट? आधा घंटा होता है, 45 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स हो जाते हैं, 90 मिनट्स हो जाते हैं. एट दैट पॉइंट इन टाइम यू माइट फील टायर्ड. तो 90 मिनट्स के बाद अगर टायर्ड फील कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू आर सेविंग योर फेवरेट क्वेश्चन टाइप फॉर द 90th मिनट मार्क. तो जैसे ही 90th मिनट में लगने लगता है कि यार फ्रस्ट्रेशन आ गया है, अभी पता नहीं क्या होगा करके, गेट योर फेवरेट क्वेश्चन टाइप नाउ. एंड वो अगर 10-15 क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर से तुम्हारा मोमेंटम आ जाएगा, जो टायर्डनेस का विंडो होता है वो निकल जाएगा, एंड यू विल नॉट बी टायर्ड टिल द एंड ऑफ द टेस्ट. सो ट्राई टू मैनिपुलेट योर क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी इन सच अ मैनर दैट व्हेनेवर यू फील टायर्ड, उस टाइम पे तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन टाइप तुम्हारे सामने होना चाहिए. Also, whenever you are solving the test, don't keep on staring at the computer screen. ठीक है, तो मॉनिटर पे स्टेयर करते बैठोगे तुम्हारे आई को बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट योर शीट पे देख के सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते टाइम पे ऊपर नहीं देख रहे हो. स्पेशली इफ यू आर प्रोन टू आई फटीग, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन और लुकिंग एट द शीट. इवन व्हेन यू आर थिंकिंग, लुक समवेयर एल्स एंड देन थिंक, बिकॉज दैट विल एंश्योर दैट यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट. अब एंग्जाइटी अगर हो रही है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? तो यहाँ पे माइंडफुलनेस या स्टे इन द मोमेंट. योर ब्रेन विल स्टार्ट गोइंग हियर एंड देयर एज सून एज यू लुक एट अ क्वेश्चन टाइप. एंड बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज व्हेन वी आर सब्जेक्ट टू सो मेनी थिंग्स, जो जल्दी जल्दी अपने को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, राइट? सो माइंडफुलनेस, स्टेइंग इन द मोमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो हम ना टेस्ट दे रहे हैं, बट हम सोच रहे हैं यार यहाँ पे कुछ अगर ऐसे होगा तो क्या करेंगे, यार ये 5 क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहे, जेबी का कट ऑफ तो मैंने सुना था 180 होता है एंड सो ऑन. तो यू आर नॉट सॉल्विंग द टेस्ट नाउ, यू आर थिंकिंग अबाउट द कट ऑफ विच इज नॉट योर job. So stay in the moment. Whenever you are feeling distracted, come back to it, take a deep breath. थोड़ा बाहर फोकस करो, take a deep breath and come back to your existing situation. आगे का सोच के कुछ नहीं होने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला. Leave the analysis वाला part to people like me जो जा रहे हैं वहाँ पे analyze करने के लिए, right? So we are going to do it for you. So don't worry about analyzing the test. तुमको analyze नहीं करना है, कितने क्वेश्चन अरिथमेटिक से आए वो काउंट नहीं करने, वो मैं करके आने वाला हूँ. तो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? माइंडफुलनेस हमेशा रखना हाई पे. डोंट लेट योर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड. When you get stuck, अगर मैं स्टक हो जाता हूँ तो फिर क्या करेंगे? चलो मतलब ये सब करके भी मैं अटक गया, फिर मैं क्या करूँगा? You are feeling anxious, right? So you have to understand one thing. Whenever you are getting stuck in one question type, just tell yourself this small story. देखो evolution के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है human beings के साथ, right? Your brain has developed to such an extent that humans developed language, they developed societies. वो लोग tech पे काम करना शुरू किए, they started understanding the laws of physics and so on and so forth. तो बहुत मेहनत किया यार human brain ने. तो यहाँ पे once you get stuck, you have to trust that evolutionary process as well. देखो evolution ने ना तुमको 2 चीज़ें दी थी. So if you look at a deer drinking water,
तो डियर पानी पी रहा है, बट वो उसका पूरा ध्यान पानी पे थोड़ी है. इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई प्रेडेटर कहाँ से आ रहा है, कहीं पे लीव्स का रसल मुझे सुनाई दे रहा है क्या, कहीं पे मुझे कोई बर्ड की कॉल्स सुनाई दे रहे हैं क्या. सो ऑल दोज थिंग्स द डियर इज ऑल्सो अलर्ट टूवर्ड्स. सो एक टाइम पे ना एक इंसान दो चीजें सोच सकता है, तो ह्यूमंस भी वो कर सकते हैं. यू माइट हैव सीन दिस फिनोमिनन व्हेन यू गो फॉर अ टेस्ट, एंड टेस्ट में ना समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, बट जब एनालिसिस कर रहे हो तो ना तो ऐसे आंसर आ जाता है. व्हाई डज दैट हैपन? इट्स नॉट मैजिक, इट्स प्योरली इवोल्यूशन. तो यहाँ पे अपने को सिर्फ ये देखना है दैट वंस यू गेट स्टक व्हाट नीड्स टू बी डन इज यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट क्वेश्चन एंटायरली. तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो बैकग्राउंड में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसको ट्रस्ट करो. बिल्कुल भी मतलब अपने ब्रेन को डाउट मत करना कि अरे तुम वापस कैसे मेरे को बताओगे, ये मत बोलना. लेट द ब्रेन डू इट्स थिंग, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना. तुम अगला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो, वापस जाओगे इस क्वेश्चन पे. आई एम प्रेटी श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. कितना भी तुम्हारा खराब मेमोरी तुमको लगता है फिर भी तुमको याद आ जाएगा. सो व्हेन यू गेट स्टक मूव ऑन एंड देन कम बैक. ठीक है. Another thing that I'm talking about is the 4-7-8 breathing technique, very very popular breathing technique. तो यहाँ पे 4 minutes का inhalation होगा, 4 seconds का inhalation होगा, 7 seconds तक you will hold it and 8 seconds you will release it. लगभग 20 seconds लगेंगे. Do it once or twice in the middle of the test, you will start feeling less tired. तो breathe, जब deep breath लेके उसको छोड़ते हो ना तो your body tells or your brain basically tells your body that everything is fine. इतना deep breath लेने के लिए तुमको टाइम मिला है, मतलब आसपास कोई प्रेडेटर नहीं है, कुछ डेंजर नहीं है. सो एवरीथिंग इज फाइन, ऑल योर एड्रेनलिन कैन गो बैक एंड यू कैन अगेन फेस योर सिचुएशन एकदम आराम से बिना कुछ टेंशन लिए. ऑल्सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग. इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो स्पेशली बिफोर द टेस्ट अगर करना है तो. टिपिकली पीपल से दैट यू कीप वन हैंड ऑन योर चेस्ट, वन हैंड ऑन योर एब्डोमेन एंड टेक अ डीप ब्रेथ सो दैट योर एब्डोमेन ऑल्सो एक्सपैंड्स. एंड जब छोड़ रहे हो तो एब्डोमेन से, स्टमक से ब्रीथ करो, राइट. सो दैट इज बेसिकली डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग. यू टेक इन डीप ब्रेथ्स एंड यू रिलीज देम while being conscious of where the air is going, and that will basically help you relax a bit as well. तो ऐसे एंजाइटी को मैनेज कर सकते हो. कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है दैट यू कैन डू जस्ट टू फील स्लाइटली रिलैक्स्ड. द लास्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप एंड रेस्ट. बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. लोग एंशियस होते हैं एग्जाम के पहले एंड दे फील दैट विदाउट स्लीपिंग दे आर गोइंग टू बी एबल टू डू वेल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है. तो टेल योर ब्रेन दैट देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू स्लीप. So make sure that you have a good sleep routine. 7 to 8 hours of sleep is mandatory before the test. So अगर morning slot है तो 10 बजे सो जाना, 10-11 बजे सोने की कोशिश करना. बिल्कुल भी लास्ट मिनट का रिविजन तुम्हारे काम नहीं आने वाला. You have prepared for this test for at least the last 3 months is what I am assuming. तो यार इतना टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब लास्ट एक रात में कुछ अलग ही चीज़ कर लोगे, ऐसा नहीं है. Most of your fate has been written. The only thing you can do is you can erase it. That is the only thing that you can do. Extra उसमें 10 मार्क नहीं निकाल के ला सकते, बट 10 मार्क बहुत जल्दी खो सकते हो. So don't let that affect you negatively. 7 to 8 hours of sleep is recommended. आराम से सो के रिलैक्स होके जाना टेस्ट को, and I think you will do your best job if you do that. But अगर बिना सोए चले जाओगे you will be groggy and you will not really do well at the test. ठीक है. नैप बिफोर द टेस्ट. अगर दोपहर का स्लॉट है एंड यू आर यूज टू टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस आर डूइंग दैट, बट अगर हो यूज टू नैप लेने के तो टेस्ट के पहले एक छोटा सा पावर नैप ले लेना. आई एम नॉट सेइंग गो टू योर सीट एंड टेक अ नैप, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू कैन टेक अ कैब और समथिंग एंड गो टू योर सेंटर इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग और इंस्टेड ऑफ गोइंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल. आराम से चले जाओ यार. टेस्ट के लिए जा रहे हो ना तो थोड़ा आराम से ठाट से चले जाओ. So take a nap before the test so that you feel nice and relaxed and fresh. ठीक है. टेस्ट के टाइम पे मत सो जाना, नहीं तो देयर माइट बी अ सिचुएशन जहाँ पे यू माइट एंड अप पैनिकिंग करे, मेरे को तो नींद लगे, आँख लगे. डोंट डू दैट. बट पहले अगर टाइम है, आधे घंटे पहले यू कैन टेक अ नाइस नैप, छोटा सा नैप ले लेना एंड यू विल फील अ बिट रिफ्रेश्ड. ठीक है. रीच द सेंटर बिफोर टाइम. यार एकदम लास्ट मोमेंट पे मत जाना. अगर 2 बजे का स्लॉट है, 2:30 का स्लॉट है, तो ऐसे 2:15 को जाके मत पहुंचना वहाँ पे, बिकॉज दैट विल क्रिएट अननेसेसरी पैनिक फॉर यू. You don't want to overwork your or tire your brain before you start the test, right? एक बार शुरू हो जाएगा टेस्ट तो ब्रेन को काम मिलेगा ना. उसके पहले ब्रेन को काम मत देना कि इतना टाइम बचा है, इतना दूर सेंटर है, जल्दी चलाओ, जल्दी जाएंगे. So don't do that. Reach before time. If you don't like looking at crowds and that gives you more anxiety, which I think it might, because a lot of people start sitting and reading their notes. अरे एग्जाम के पहले 15 मिनट क्या पढ़ लोगे नोट्स. तो डोंट वरी अबाउट ऑल दोज पीपल. अगर बहुत एंशियस लग रहा है तो जाके कोई कैफे में बैठ जाओ, जाके आसपास कुछ रेस्टोरेंट मिल रहा है तो जाके बैठ जाओ, अपना रिलैक्स करो एंड देन यू गो टू योर टेस्ट सेंटर व्हेन दे स्टार्ट टेकिंग पीपल इनसाइड. ठीक है. तो रीच योर सेंटर बिफोर टाइम सो दैट यू आर नॉट स्ट्रेस्ड. एंड सबसे लास्ट चीज, एक छोटा सा सजेशन है. इफ यू आर फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग द टेस्ट, एक चीज कर सकते हो, यू कैन चू सम चूइंग गम, वो कर सकते हो, या मिंट एक कुछ कैरी कर सकते हो. Chances are that they will not allow you to take it inside the center.
So you can start chewing it when you are in the line. Don't show them that you are chewing it, नहीं तो they will ask you to dispose it. ऐसा हो सकता है. See, कुछ centers होते हैं जहाँ पे you might have, for lack of a better word, a lot of boomers might be there, or you might have people with थोड़ा सा ऐसे regressive mindset ऐसा हो सकता है. So they might say कि नहीं this is not allowed and so on and so forth. It should be allowed. मतलब क्या ही कर लोगे यार, chewing gum chew करके क्या ही तुम cheat कर लोगे, right? But they might take offense and they might ask you to spit it out or something. तुमको दिखाना मत, बहुत obvious करके मत chew करना. Just keep it, and when you go inside you can maybe continue doing it. बट वो करने से तुम्हारा ना थोड़ा एक्टिव रहेगा, सो यू विल नॉट फील स्लीपी बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग. तो you can chew a gum, or maybe generally people do that like suck on a mint and all, but you can carry a piece of chewing gum, you can consume that, and I think that will keep you a bit more awake. ठीक है, do let me know if you have some techniques of your own that you would like to share with me in the comment section below, and I'll try to give you a shout out. And if you like the video, do leave a like. If you think that this is interesting content, do share it with people that you know, and if you haven't subscribed to the channel yet, do subscribe to the channel for more such meaningful content. I'll see you again in the next video.